اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اعلان، بولے کہ سندھ حکومت صنعتی ترقی کے لیے صنعتوں کی بھرپور مدد کرے گی۔ بتائیں سٹیل مل گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں کون سے شیٹ مہیا کر سکتا ہے؟ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اشیاء یہاں سے برآمد ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انڈس موٹرز کا دورہ، سی ای او انڈس موٹر علی اصغر جمالی نے وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال کیا۔ اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے عاجز جمالی۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انڈس موٹرز کا دورہ کیا، جہاں پر انڈس موٹرز کے سی ای او اصغر جمالی اور دیگر نے وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال کیا۔ اس موقع پہ انڈس موٹرز کمپنی کے مسٹر سنجی سناگی نے ایک بریفنگ بھی دی، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ دنیا کے 49 ممالک، اور اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ دنیا کے 39 ممالک میں مینوفیکچرنگ کی سہولت ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس موقع میں کہا کہ کوئی ایسا بنایا جائے کہ جو اسٹیل مل ہے اس سے انڈس موٹر کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت پاکستان اسٹیل مل کی بحالی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ مینوفیکچرنگ اسٹیل مل کا کیا چیزیں چاہیے، تو اس وجہ سے کافی تفصیلی بات ہوئی ہے، اور سندھ حکومت نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ انڈس موٹرز کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ جی، انڈس موٹرز کے ساتھ مل کر کام کیا جائے، بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ ڈی جی رینجر سندھ کی آئی جی غلام نبی میمن سے ملاقات ہوئی۔ شہر میں امن و امان کے حوالے سے جاری کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اعلیٰ پولیس افسران بھی شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں ملاقات کے حوالے سے ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ بات کریں گے معراج اختر سے، معراج بتائے گا۔ جی بالکل بالکل، ڈی جی رینجر سندھ ہیں میجر جنرل اظہر وقاص، وہ آج سی پی او پہنچے سینٹرل پولیس آفس، جو کہ پولیس ہیڈ آفس بھی کہلاتا ہے۔ یہاں پر آئی جی سندھ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، آئی جی سندھ کے ساتھ ملاقات کی ہے غلام نبی میمن کے ساتھ انہوں نے، اور اس دوران میں جو ہے وہ اعلیٰ افسران جو ہیں دیگر پولیس کے وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ڈی جی رینجر سنگھ جو ہیں انہوں نے جو کراچی میں امن و امان کے حوالے سے اور پورے سندھ میں امن و امان کی جو کوششیں اور کوششیں جاری ہیں پولیس کی جانب سے اور رینجرز کی جانب سے، ان اہم امور پر جو ہے تبادلہ خیال کیا ہے، اور بہت سارے معاملات پر اتفاق بھی کیا گیا ہے، کیونکہ شہر میں جو کرائم کی پوزیشن ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، اسٹریٹ کرائم کی۔ اس کے علاوہ قتل و غارت کے کچھ واقعات ابھی رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں تقریباً کچھ ماہ کے دوران میں جو ہے 6 انکار جو ہے پولیس کے وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے بات چیت ہوئی ہے، اور امیر سندھ خاص طور پہ کشمیر اور دیگر علاقوں میں جہاں پر اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہو رہی تھی اور ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن چل رہا تھا، ان معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات ابھی جاری ہے، اور اب سے کچھ دیر میں اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی جائے گی اور فوٹیجز بھی جاری کی جائیں گی۔ جی، ملاقات ابھی جاری ہے، بہت شکریہ۔ انٹر سال اول کے آن لائن داخلوں میں سنگین بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کراچی کے کئی اہم کالجز کے میرٹ کو گرا دیا گیا۔ پرنسپل ڈی جے سائنس کالج سلمان سیال کا کہنا تھا کہ 70% داخلے لوکل میرٹ پر ہوتے ہیں، ہمارے پاس اضافی طلبہ آئے تو انہیں داخلہ نہیں دے سکیں گے۔ بات کریں گے آئمہ خان سے، آئمہ بتائے گا۔ جی بالکل، دیکھیں رواں سال جو ہے وہ فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن میں محکمہ کالج کی جانب سے جو ہے وہ بے قاعدگیوں کا کافی حد تک جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے، جس میں کافی سارے کالجز کے جو میرٹ ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈی جے سائنس کالج کے جو ہے وہ پرنسپل سلمان سیال صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے تفصیلات۔ سر ہمیں بتائے گا کیا وجوہات بنی ہیں کہ میرٹ جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جے کالج کا لاسٹ ایئر کا میرٹ 87 تک کچھ تھا، لیکن رواں سال جو میرٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ 81 کر دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات بنی ہوں گی؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں میرٹ کسی نے جان بوجھے تو کم نہیں کی ہوگی، میرے حساب سے تو ایک دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو ایڈمیشن تھا وہ اوپن میرٹ پہ تھا، ابھی اوپن میرٹ نہیں ہے، 70% لوکل ہے، 30% اوپن ہے۔ تو جب لوکل بچے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کم گریڈ والے بھی آئیں گے، ایک وجہ یہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ
जैसे मैं आया लास्ट सेशन में तो हमने बच्चों की जो अटेंडेंस है उसको इंश्योर करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाई हुई है। पहले अमूमन ये होता रहा है कि भाई बच्चे एडमिशन तो करा लेते हैं लेकिन कॉलेजेस में आते नहीं हैं, तो अभी हमने सब बच्चों को पता है पूरी कराची में कि डीजे में बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, हमें जाना पड़ेगा, ये भी वजह हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो हैं वो डीजे साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल सलमान सियाल साहब मौजूद थे। इनका ये बताना है कि कराची का ये डीजे कॉलेज वो कॉलेज है जहाँ पे जो है वो तलबा की अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक तौर पे जो है वो की जाती है ताकि जो है वो तलबा की कॉलेज में हाजिरी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जी दूसरी जानिब आपको बताएं कि हायर सेकेंडरी स्कूलों में फर्स्ट ईयर में एक भी दाखिला न होने का मामला, सूबाई वजीर तालीम कहते हैं कि मैट्रिक के नताइज का ऐलान अब तक नहीं हुआ। बात करेंगे इस हवाले से जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद है। जुबैर बताएगा तमाम कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूलों में दाखिला मुकम्मल कैसे होगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें सूबाई वज़ीर तालीम व मातियात सिंध सैयद सरदार अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सरदार शाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अभी महकमा कॉलेज एजुकेशन की जानिब से एक आदाद-ओ-शुमार जारी किया गया जिसमें सरकारी कॉलेजेस की कुछ मेरिट लिस्ट जो है गिर गई। दूसरा, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है इस दफ़ा इंटर का एक भी दाखिला नहीं हुआ, तो इस पर क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, इसमें जो दाखिला की जो आप नंबर बता रहे हैं वो ये लोग नहीं समझते कि अभी तक मैट्रिक की रिजल्ट ही नहीं आई है। हम प्रोविजनल एडमिशन दे रहे हैं वो 9th वाले पे, तो मैट्रिक की जैसे रिजल्ट आएगी तो एनरोलमेंट जो है, जब हम बढ़ा रहे हैं उसका पीरियड, तो एनरोलमेंट हो जाएगी, पहले से भी ज्यादा होगी, वो बात नहीं है। अब हायर जो स्कूल्स का जो हायर सेकेंडरी स्कूल का जो ताल्लुक है वो स्कूल एजुकेशन की है, उनकी डेटा में भी वो बच्चे रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो बहरहाल जो नंबर कोई गिरा नहीं है कैप वाली पॉलिसी में, वो एक्चुअली ये हुआ है कि जो बच्चों के अभी तक रिजल्ट नहीं आए मैट्रिक के, अब जैसे रिजल्ट आएंगे तो उनकी एडमिशन फिर होगी। उसमें जो भी एनॉमलीज हैं या उसमें जो भी खामियां हैं उसको मैं खुद ही आज ही मैंने मीटिंग रखी है, मैं उसको देख रहा हूँ, ये हो जाएगा, कोई इस बार इशू नहीं होगा। महकमा सकाफत, आप महकमा सकाफत जो है आप काफ़ी अरसे से उसके मिनिस्टर थे, लेकिन अब जो है महकमा सकाफत के अगर हवाले से बात की जाए तो काफ़ी सन्नाटा हमें देखने को नजर आता है, ना कि कोई सकाफती सरगर्मियाँ मुनक्किद की जा रही हैं। आपके जाने से इतने सन्नाटा क्यों है महकमा सकाफत में? ना सेक्रेटरी कोई काम करते हैं, ना मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है वो मीडिया के मंजर आम पर आते हैं, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इस वक्त जो मिनिस्टर हैं सैयद जुल्फिकार अली शाह, वो बड़े मुतहरिक हैं और वो उसमें जज्बा भी है काम करने का, वो काम करेगा क्योंकि वो एक्टिव रहता है हमेशा। अब कल्चर के हवाले से मैंने जो किया 7 साल तक, वो एक डिपार्टमेंट जो सोया हुआ था, पड़ा हुआ नीचे डिपार्टमेंट, लोगों को पता ही नहीं था कल्चर डिपार्टमेंट भी एग्जिस्ट करता है, उसको इंटरनेशनली हम ले गए और उसकी रिकॉग्निशन हुई और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में कल्चर डिपार्टमेंट को वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते थे कि अब सिंध वालों से आप काम करना सीखें, उनकी बजट लैप्स हो जाती थी। सूबाई वज़ीर सकाफत सिंध सैयद सरदार अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने जो है महकमा कॉलेज एजुकेशन के हवाले से जो स्कैप के जो मेरिट लिस्ट कॉलेजेस की जो आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो इंटर के इम्तहान से इंटर के दाखिले से मुतल्लिक जो मामला थे, तो उस पर उनका ये कहना था कि मैट्रिक के नताइज का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। जब तक मैट्रिक के मुकम्मल तौर पर नताइज का ऐलान नहीं कर दिया जाता तो इस पर किसी भी किस्म के कोई मौक़िफ़ देना जो है इंतहाई गलत हो सकता है। शहरियों की जानिब से ताहम वज़ीर तालीम का ये कहना था कि वो इस मामले को खुद भी देख रहे हैं और जो मेरिट के हिसाब से जैसे ही नताइज जो है वो मैट्रिक के जारी कर दिए जाएंगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी मेरिट के हिसाब से दाखिले जो हैं वो लिए जाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्कूल खुलने में 2 रोज बाकी रह गए हैं, जबकि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बेशतर किताबें मार्केट से गायब है। वालिदैन और तलबा मारे फिरने पर मजबूर हैं। बात करेंगे इस हवाले से, रिपोर्ट देखिए। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली, दरसी कुतुब ताहाल मार्केट में ना आ सकी। मार्केट में दरसी कुतुब की अदम दस्तियाबी पर चेयरमैन उर्दू बाजार एसोसिएशन साजिद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साजिद यूसुफ का कहना है कि मार्केट में अब भी 40% दरसी किताबें दस्तियाब नहीं। इसकी वजह पब्लिशर्स का साजिशी टोला है जो अपने फायदे के लिए बार बार अदालत गया, जिससे किताबों की छपाई में ताखिर हुई। इस बार मौजूदा हुकूमत सिंध ने बजट में भी इजाफा किया है, लेकिन पब्लिशर के एक साजिशी टोले ने अपने फायदे के लिए बार बार अदालत जाकर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का वक्त बर्बाद किया, जिसकी वजह से किताबों की छपाई में ताखिर हुई।
जनरल सेक्रेटरी उर्दू बाजार एसोसिएशन हुसैन अब्बास कहते हैं कि स्टेशनरी पर 19% टैक्स आयद किया गया है, जिसकी वजह से पेन, पेंसिल, कलर्स और दीगर चीजें महंगी हो गयीं। इस वक्त बजट के बाद कुछ 18% से 20% स्टेशनरी पे टैक्स नाफिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चों पे और पेरेंट्स पे एक इजाफी बोझ देखने में आ रहा है। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि ये तालीमी बिल्कुल इस पे जो होना चाहिए कि बिल्कुल हमें रिलीफ मिलना चाहिए। तालीमी दुश्मन, मैं इसको कहूँगा कि ये तालीमी दुश्मन पॉलिसी है, इसको हमें फिलफौर कुछ नजरसानी हुकूमत वक्त को करनी चाहिए। उर्दू बाजार में पहली ता इंटर, रियाजी, उर्दू, केमिस्ट्री, फिजिक्स और अंग्रेजी की किताबें ताहाल दस्तयाब नहीं। दुकानदारों का कहना है कि कुछ पता नहीं ये किताबें कब तक मिलेंगी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुलाकात हुई है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से तरक्याती काम जारी। मेयर कराची की वर्ल्ड बैंक के वफ्द को ब्रीफिंग। मुर्तजा वहाब बोले कि शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। मेयर कराची ने वर्ल्ड बैंक के वफ्द को बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत और काउंसिल हॉल का दौरा भी करवाया है। बात करेंगे इस हवाले से, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। शुएब, बताएगा दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक का वफ्द जो है बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत पहुंचा था। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और बल्दिया उज़्मा कराची के आला हुकाम से जो है मुलाकात की है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने वर्ल्ड बैंक के वफ्द को शहर में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक जो है तफसीली तौर पर आगाह किया है, जबकि शहर में सीवरेज और पानी के मसाइल से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। मेयर कराची ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से शहर में तरक्याती कामों से मुतालिक भी वर्ल्ड बैंक के वफ्द को जो है ब्रीफिंग दी है और वर्ल्ड बैंक के वफ्द को उनकी जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत और कौंसिल हॉल का भी दौरा करवाया गया है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से तरक्याती काम जो है जारी है। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए जो है हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक जो है इस शहर की तरक्की व खुशहाली के लिए काम जारी व सारी रखेंगे। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरजानी टाउन में यूसी 5 और 6 की मरकजी शाहरा पर सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट पर तरक्याती काम जारी है। बात करेंगे इस हवाले से रिजवान अहमद। रिजवान, बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वादे की एक और तकमील जो है वो मंगोपी टाउन की यूसी 5 और 6 के दरमियानी शाहरा की तामीर के हवाले से जो है वो मुकम्मल होने जा रही है। और ये एक देरीना मसला था, बरसा बरस से ये सड़क जो है बदतरीन तबाहाली से दो चार थी, जिसके नतीजे में यूसुफ कोट और इतराफ में कई आबादियां जो हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार थी। बहरहाल मेगा प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पे सेवरेज लाइन जो है बल्क वो डाल दी गई, पानी की लाइनें दुरुस्त कर दी गई हैं और अब सड़क की तामीर हो रही है। इसकी टोटल सुपरविजन जो है वो हाजी अली नवाज बरोई कर रहे हैं, जो कि मंगोपीर टाउन के चेयरमैन है। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये यूसुफ कोट का एक देरीना मसला था जो कि काफ़ी अरसे से, आपको भी याद होगा, मीडिया पे चली थी, यहाँ पे किश्तियाँ चलती थी। ये वही जगह है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों को जो दहलीज पे सहूलत दिया जा रहा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला क़यादत भुट्टो साहब के साथ साथ CM सिंध और ML डॉक्टर शहजाद रहमानी और हमारी पूरी तंजीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अवामी काम पे इस वक्त यहाँ पे हमारे नुमाइंदों ने, यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदों ने एक निशानदेही की थी कि रोड के साथ साथ यहाँ पर एक अंडरग्राउंड कोई कचरा कुंडी जिसमें गार्बेज है, कचरे हैं, अगर ये नहीं निकाला जाएगा तो ये रोड जो है खराब हो जाएगी चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में। तो उसके लिए ये इंकशाफ को हमने देखते हुए यहाँ पे आज मशीनरी लगी हुई है, जो ये आप देख सकते हैं, जो गार्बेज निकलता है, यहाँ कोई माजी में कोई गार्बेज पॉइंट था तो उसको सफाई करने के लिए हमने यहाँ मशीनरी लगाई है। जो ये काम कर रहे हैं, ये बिलावल साहब की जो बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है यूसुफ कोट के लिए, उसके तहत यहाँ पे रोड का भी काम हो रहा है और उसके साथ साथ जो रोड के नीचे जो गार्बेज है, जो लीकेज है और जो पुराने लैंड डले हुए वो सब जो है डैमेज करके इसको हम क्लियर करेंगे ताकि कल कोई रोड बैठे नहीं। काउंसिल हजरात भी है, यूथ भी है हमारा, और हमारी तंजीम भी है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है
कि माजी में जिस तरह खास तौर पर कच्ची आबादियों में रोडों को खोदा जाता है और रोडों को ख़राब किया जाता है, उस पर आपने निगरानी रखना है, क्योंकि यहाँ टाउन चेयरमैन हर वक्त मौजूद नहीं रहते। आप बल्दियाती नुमाइंदे लोकल हैं और यहाँ के तंजीम है, यहाँ का काउंसलर है, या चेयरमैन वाइस चेयरमैन, आपने निगरानी करनी है, आपकी चीज़ें निगरानी आपने करनी है। हाजी नवाज बरोई कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो तकमील के आखिरी मराइल में है और करीमी चौरंगी से लेके GSN चौक तक 1.25 किलोमीटर तवील ये 2 रविया शाहरा जो है अपने तकमील के आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। लेकिन अब आवाम की जिम्मेदारी है कि इस सड़क की और इसके नीचे से गुजरने वाली लाइनों की हिफाजत करें, इसको बिला वजह ना खोदा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तवील अरसे तक इससे मुस्तफीद हो सकें। जी, शहरी कायद में कचरे के अंबार हैं। शाहराए कायदीन पर जमा कचरे के ढेर से ताफुन उठने लगा है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, बताएंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, शहर गाइड में जा बजा गंदगी के ढेर बीमारियों की वजह बनने लगे हैं। मुख्तलिफ शाहराओं पे जो वो गंदगी का ढेर और बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। इस वक्त हम शाहरा कायदीन के ऊपर मौजूद है। खुदादाद कॉलोनी से आने वाला ये रूट है जो आगे नुमाइश चौरंगी की तरफ मिलाता है। इस वक्त इस सड़क की बात की जाए तो यहाँ पे ना सिर्फ कचरे का ढेर है बल्कि मुतसिल सड़क के ऊपर जगह जगह जो वो इस कदर टनों के हिसाब से कचरा भरा हुआ है कि यहाँ से गुजरने वाले शहरी अजियत में जो है वो मुब्तला होते हैं, जबकि बदबू, ताफुन और बीमारियों की वजह भी ये सड़क जो है वो बनती चली जाती है। जबकि यहाँ पे मौजूद कुछ शहरी भी हैं, अगर उनसे हम बात करने की कोशिश करें तो उनसे हम बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा सर, यहाँ पे जो वो कचरे का ढेर कितने टाइम से जो वो लगा हुआ है, जबकि ये सड़क जो वो यहाँ से होते हुए शाहरा कायदीन से मज़ार कायद की तरफ भी जाती है? यहाँ पर ये मज़ार कायद है, यहाँ फाउंडर ऑफ मसद जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो उनका यहाँ मसद मज़ार है और यहाँ ये गंदगी का ढेर काफ़ी टाइम से है और ये कोई ख़त्म नहीं हो रहा। जब कोई VIP मूवमेंट या कोई ऐसा इवेंट आता है तो ये सफाई कर देते हैं, अदरवाइज़ यहाँ कोई मसद देखने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। इस शहर का कोई, इस इलाके का पुरसान हाल नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। अगर किसी को हम जाके कंप्लेन करते हैं तो वो कोई इस पर सुनवाई नहीं है। अच्छा बताइएगा सर, इस वक्त कितनी ये बदबू, ताफुन ये आपको महसूस भी हो रहा है, कितनी ये बीमारियों की वजह भी बनता होगा? सर, ये हमारा कचरा कुंडी से दूसरा घर है और यहाँ हम बच्चे हमारे अक्सर बीमार रहते हैं क्योंकि ये बदबू, इसका फ्लो इतना गंदगी है और इतनी बदबू है कि हम क्या बताएं आपको कि हमारे बच्चे जो है अमूमन अक्सर बीमार रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। घर ही के साथ जो वो कचरे कुंडी के साथ ही जो वो इनका घर भी वाक़ है। इनका यही कहना है कि गंदगी और कचरे की वजह से आए दिन जो वो बच्चे और दीगर जो वो लोग बीमार भी होते हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई इस पर एक्शन नहीं होगा। जबकि ये मुतसिल सड़क होती हुई फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार से भी तरफ जाती है, जिसको मेरे रकम में आप देखें तो शायद वो नज़र भी आता होगा। इस वक्त इस सड़क की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो वो गंदगी का ढेर इस कदर है कि बदबू, ताफुन इतना उठ रहा है। जबकि दूसरी जानिब शहरियों का ये भी कहना है कि VIP मूवमेंट अगर कोई होता है तो उस पर हुकूमत हलचल में आती है और इस सड़क की सफाई करती है। उसके अलावा इस सड़क की जो वो सफाई जो है वो होने में कभी नहीं आती। जी, खातून की कब्र की बेहुरमती करने वाले मुलजिम को जिला शर्की के मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अपडेट करेंगे जवाद हासिफ। बिल्कुल, देखें, कब्र में खातून मैयत की बेहुरमती का मुकदमा है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम सलीम को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अब मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने मुलजिम को जुमेरात तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है, जबकि इसके अलावा मुलजिम से तफ्तीश का दायराकार मजीद वसी करेंगे। मुद्दई मुकदमा ने ये जो खातून निशाना बनी थी कब्र में, उनके बेटे ने जो है वो थाना अवामी कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करवाया था। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक वो घर पर मौजूद थे जब उन्हें इत्तला मिली कि कुछ लोग उनकी वालिदा के कब्र के पास जो है वो भीड़ मौजूद है। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि इलाका मकीनों ने एक शख्स को पकड़ रखा है जिसका नाम सलीम है, जो कि ज़ख्मी हालत में मौजूद है और जो उनकी वालिदा की कब्र खोद कर मैयत को निकाल कर उसका कफन उतार कर जो है वो जिना कर रहा था और ये सब जो है वो इमरजेंसी लाइट की रोशनी में कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने पकड़कर उस पर तशद्दुद किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और फिर पुलिस ने मुलजिम सलीम को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया है। इसके खिलाफ मुकदमा जो है वो थाना अवामी कॉलोनी में दर्ज किया गया था। जी, यौम आज़ादी में 2 दिन बाकी रह गए हैं। बच्चों के साथ वालिदैन भी खरीदारी में मसरूफ हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से अयाज राना।
जी बिल्कुल, जहाँ हम बात करें 14 अगस्त कौमी यकजहती, कौमी मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत का इजहार करने का ये दिन होता है, जिसमें खासकर सर फहरिस्त जो होते हैं वो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो अपने लिए पाकिस्तानी झंडे से मलबूस बने हुए जो कपड़े होते हैं उसकी ख़रीदारी के लिए जो वो इस वक्त बाज़ारों में आते हैं, अपनी वालिदैन से कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी परचम की बने हुए जो है वो कपड़े चाहिए। तो अब एक हमारे साथ नन्ना दोस्त भी मौजूद है, उनकी वालदा उनको लेके आई, उनसे जानते हैं। मैम, स्कूल में बच्चों को बनाना है, क्या चीज़ है जो बच्चे क्या जिद कर रहे हैं, किस लिए आई हैं, क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह से हमारा कौमी त्यौहार है, ऐसी बात है, इसको हम जोश और खरोश से मनाते हैं और बच्चों का इस दौरान जज्बा आप देखा करें, मम्मा हमें ये भी चाहिए, मम्मा हमें वो भी चाहिए, तो इसलिए हम इनको आज लेकर आए तैयारी करवाने के लिए। आज इन्हें कपड़े भी दिलाएंगे, कौमी परचम दिलाएंगे, इंशाल्लाह इनको बैच वगैरह सब कुछ दिलाएंगे हम। बाजे भी दिलाए जाएंगे जो बाजे? जी बिल्कुल, जी ज़रूर बाजे ज़रूर दिलाएंगे, बल्कि बाजे इन्होंने ले लिए हैं। क्या कौन सा वाला सूट लिया, क्या लिया, क्या तैयारियां की हैं अब तक? अभी तो लेंगे, अभी तो देख रहे हैं, अभी छोटे भाई का लिया, मेरी बहन का लिया। क्या लेना, क्या बोला मम्मा से? झंडे हो गए या अभी कपड़े ले रहे हो? पहले झंडियाँ भी लेनी है, अभी तो झंडियाँ भी रहती हैं, घर वगैरह भी सजाएंगे, झंडे भी लगाएंगे। ठीक है जी। बच्चों पे जज्बा है और मार्केट है, जहाँ हम झंडा गली देखते हैं, झंडा गली के अलावा भी इस वक्त मैं लियाकताबाद में मौजूद हूँ। ये लियाकताबाद की मार्केट है, जहाँ पे ये एक बड़ी मार्केट होती है, जहाँ पे खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, स्टॉल्स यहाँ भी सज गए हैं। खवातीन के लिए भी यहाँ पे ड्रेसेस जो हैं वो रखे गए हैं, जिनको चाहिए वो हरा और सफ़ेद रंग का अपना 14 अगस्त की मुनासबत से जो है वो कपड़े और बेचे भी जा रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। तो ये है कौमी जोश और जज्बा, जिसको 14 अगस्त को मनाना है, पुरजोश तरीके से मनाना है। उसी के लिए जो ये स्टॉल सजते हैं और बच्चे आते हैं और ख़रीदारी करते हैं और अपना कौमी जज्बा जो है वो दिखाते हैं।